and Suprabhat. I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. I express my sincere gratitude to late General Bipin Rawat and General Anil Chauhan, my illustrious predecessors, for their exemplary leadership and contribution in this journey. We pay homage to our brave hearts, whose valor, sacrifice, and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. भारत को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल गया। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने आज आधिकारिक तौर पर देश के तीसरे सीडीएस के रूप में पदभार संभाल लिया। उन्होंने जनरल अनिल चौहान की जगह ली है, जो करीब 3.5 साल तक इस पद पर रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने देश की तीनों सेनाओं की संयुक्त सैन्य नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली। पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल राजा सुब्रमणी ने साफ कहा कि आने वाले समय में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्त संचालन और एकीकरण उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री के जॉइनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन विजन को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश ने सशस्त्र बलों पर जो भरोसा जताया, उसके लिए वो आभारी हैं। उन्होंने कहा कि सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय और सभी रणनीतिक संस्थान एक टीम के रूप में मिलकर भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। हथियारों और रक्षा तकनीक को लेकर उन्होंने बड़ा संदेश दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुका है। इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में स्वदेशी हथियारों, रक्षा प्रणालियों और नई तकनीकों के विकास, उत्पादन शामिल किए जाने और उनके उपयोग की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा। उनका मानना है कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करके भारत को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। And Suprabhat. I am honored to assume charge as the Chief of Defence Staff. We are grateful to the nation for the trust reposed in the armed forces. We, the Indian Army, Navy, Air Force, Ministry of Defence, strategic institutions, and all stakeholders stand united as part of the whole of nation approach to strengthen India's security. We are committed to implement the vision of our Honorable Prime Minister, JAY, Jointness, Atmanirbharta and Innovation. Transformation of the armed forces and organizational reforms to enhance jointness, synergy and integration will be the primary focus. Atmanirbharta is a central pillar of our national security. We will accelerate the development, induction and integration of indigenous weapons in our armed forces. Innovation in thought and action will drive our capability development. Greater collaboration between the military, the industry, academia, startups and the research ecosystem will be the key enabler for modernization. सीडीएस जनरल ने ये भी कहा कि भविष्य की सेना केवल हथियारों से नहीं बल्कि नवाचार से मजबूत होगी। इसलिए सेना, रक्षा उद्योग, यूनिवर्सिटीज, शोध संस्थानों और
स्टार्टअप्स के बीच सहयोग बढ़ाया जाएगा। उनके अनुसार नए विचार और नई तकनीकें ही सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। इस दौरान जनरल सुब्रमणी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान को भी याद किया और साथ ही साथ उनके योगदान की सराहना भी की। साथ ही साथ जनरल सुब्रमणी ने सैनिकों, नाविकों और वायु योद्धाओं की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका प्रशिक्षण और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के हितों की रक्षा का भी भरोसा दिलाया। Our armed forces have consistently demonstrated professionalism and operational decisiveness in safeguarding our national interests. We are committed to protect the sovereignty and territorial integrity of our country. I express my sincere gratitude to late General Bipin Rawat and General Anil Chauhan, my illustrious predecessors, for their exemplary leadership and contribution in this journey. We acknowledge the courage and professionalism of our soldiers, sailors, and air warriors. Their training and welfare will be our foremost priority. We pay homage to our brave hearts, whose valor, sacrifice, and dedication to the nation continue to inspire us. We are committed to the welfare of our veterans and Veer Naris. I assure the citizens of India that the armed forces will continue to serve the nation with dedication, courage, honor and professionalism. Jai Hind. आपको बता दें, सीडीएस जनरल राजा सुब्रमणी भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल से जुड़े रहे हैं। वो लंबे समय तक विभिन्न महत्वपूर्ण सैन्य और रणनीतिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। सीडीएस बनने से पहले वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में बड़ी भूमिका निभा रहे थे और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड से जुड़े रणनीतिक कार्यों में योगदान दे चुके हैं। उन्हें सैन्य रणनीति, सीमा सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभियानों और रक्षा सुधारों का अनुभव है। अब सीडीएस के रूप में उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, थिएटर कमांड सुधारों को आगे बढ़ाना और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। साथ ही साथ देश की सैन्य तैयारियों को नई दिशा देनी होगी और उनके इस कार्यकाल में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण को नई गति मिलने की उम्मीद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।